Recording pending. Why? Yes, it is now started. So once again, the DC-DC converter. In the buck boost converter, the output is kVs, and this is the block diagram. And we know that the more this reference voltage is, if it is higher, then the on period will be longer, and the output voltage will be higher. So this is the example we have to study in this lecture. Example number 5.3, Muhammad Harun Rashid. So this is this circuit of a buck converter, because in this circuit the output voltage will be less than the supply voltage, and we know that in this circuit the output, if we learned something about the CCM mode of operation and then the DCM mode of operation. So we have to design circuit always in the CCM mode, and it means continuous current mode of operation or continuous conduction mode of operation. We should try to avoid the DCM, because DCM is not is a discontinuous mode of operation. It's not, generally it is not desirable. So always desirable is CCM. And if this circuit is a CCM, then we know that its output fluctuates from minimum, its output current fluctuates from minimum value to maximum value. Let's suppose the question is, and how we can minimize the ripple in this circuit. Okay. Sorry, I'm repeating once again. So the question is, find the minimum value of the load inductance to limit the ripple. So the output fluctuation in the output we have to limit down to how we can limit the output fluctuations, output current fluctuation in the circuit. We can increase the value of the inductance, but how much the value of the inductance should be increased? So the question is, find value of inductor L that would limit the maximum load ripple of average output current to 10% for the given circuit of the buck converter. Okay. तो यहाँ पर जो आउटपुट करंट है, ये जो एवरेज आउटपुट करंट है, इसे इसकी जो फ्लक्चुएशन है वो 10% ऑफ द सप्लाई ऑफ द आउटपुट करंट की आउटपुट करंट की 10% से फ्लक्चुएशन इंक्रीज नहीं हो. तो क्वेश्चन इज सिंपल, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस. किस कंडीशन के लिए वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस मालूम करनी है कि आउटपुट रिपल इसकी जो आउटपुट करंट है वो से 10% ज्यादा नहीं जाए. लेट्स वी कंटिन्यू. इफ वी ड्रॉ this sentence, if we describe this sentence in the graphical way, so this is the output current. Here we can see the output current starts from this one, from minimum current to the maximum current, and then maximum to the minimum current, and the cycle continue. So the average here, the fluctuation is from minimum to the maximum current. जो average और जो average current है वो IA है. Average output current is IA, and that is given in this example that the average current is 200 amperes. तो इस सर्किट की जो आउटपुट है उसकी जो एवरेज करंट है वो 200 एम्पियर है. लेकिन जब इंडक्टर एनर्जाइज होता है और डी एनर्जाइज होता है तो इसकी आउटपुट करंट फ्लक्चुएट होती है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक. तो आउटपुट करंट फ्लक्चुएट होती है आई मिनिमम से लेके आई मैक्सिमम तक. एंड द क्वेश्चन सेज दैट द आउटपुट करंट की जो फ्लक्चुएशन है शुड नॉट मोर देन 10%. तो आई मैक्सिमम कितना होगा? एवरेज अगर 200 है तो आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा? वी शुड नो
I maximum is 200 का 10% means 20% fluctuation is allowed. 10% fluctuation का मतलब क्या हो गया? 200 ampere का 10% fluctuation means 20 amperes. It means the fluctuation from I minimum to I maximum should not be greater than 20 amperes, right? So some more data given for this example. For example, the supply voltage is 550, frequency operating. This transistor is operating at a frequency of 250 hertz, and R is equal to 0.25 ohm. Probably this is some sort of DC motor. तो ये R की वैल्यू 0.25 ohm है, ये R यहाँ पर है, इसकी वैल्यू is 0.25 and this is such a small resistance that indicates that ये हो सकता हो ये कोई DC मोटर हो या कोई बहुत लाइट रेजिस्टेंस का कोई लोड है यहाँ पर. ओके, and the average load current is given to you is 200 ampere. और अच्छा ये there is one more thing. It looks like a battery. It's basically EMF. E stand maybe it is, I don't know, but maybe E stand for EMF. अगर ये DC मोटर है तो जब ये जैसे जैसे रन करना शुरू होगा DC मोटर, इसकी EMF वोल्टेज इंक्रीज करने शुरू हो जाएंगे, right? So EMF can be a DC voltage here. ठीक है, लेकिन in this question it is said that E is equal to 0 volt. तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, यहाँ पर आप एक शॉर्ट सर्किट बना दें, एक वायर लगा दें यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि the question is E is equal to 0 volt. So this is not being considered, okay, but this is shown in the circuit. So तो आपको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले आप ये पता करें लोड रिपल एक्सेप्टेबल 10% है. लोड रिपल मींस चेंजेस फ्रॉम मिनिमम टू द मैक्सिमम, ये कितना एक्सेप्टेबल है? 10% है. So the load ripple is denoted by del I, that is change in the current from I minimum to I maximum, और average 200 है तो 0.1 means 10%. So load ripple acceptable is 20 amperes. 20 ampere is definitely the 10% of 200 ampere. इसका मतलब ये हुआ कि I minimum से लेकर के I maximum तक जो maximum current change होगा वो 20 एम्पियर है, राइट? तो एवरेज से मैक्सिमम तक कितना करंट चेंज है? 10 एम्पियर. एवरेज से मिनिमम तक कितना करंट चेंज है? 10 एम्पियर्स. ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस वन. So duty cycle is D. It's also denoted by K, and duty cycle we know is T on upon T. अच्छा, इसमें कुछ और भी चीजें दी हुई, ये डेल आई आ गया फिगर में. And this is a complete T time period, total time period ये है T है. इसमें जो T on time है वो ये है, and T on time is equal to KT. We know T on time is equal to यहाँ पर आप देखेंगे T on time KT के बराबर है, and T of time we can calculate T of time. So these are not very difficult, but these are very simple, but just logical things we have to put here. तो ड्यूटी साइकिल K इज इक्वल टू T ऑन अपॉन T है. सो T ऑन टाइम कितना हो जाएगा? ये T इधर ट्रांसफर होके KT. सो T ऑन इज इक्वल टू KT, एंड दैट्स व्हाई वी प्लेस T ऑन की जगह पे यहाँ पे हमने KT प्लेस कर दिया है. एंड T ऑफ टाइम इज इक्वल टू कितना होगा भाई? T ऑफ टाइम, ये टाइम कितना होगा? टोटल टाइम कितना है? T, कैपिटल T. टोटल टाइम से ये टाइम मैं निकाल दूंगा तो T ऑफ टाइम बच जाएगा, ठीक है ना? सो द टोटल T ऑफ टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम माइनस ऑन टाइम. तो ये आपके पास T ऑफ टाइम यू कैन फाइंड. सो T टोटल टाइम ऑफ T माइनस KT, और दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 माइनस KT. सो द T ऑफ टाइम इज इक्वल टू 1 माइनस K multiplied by T. T on time equals to KT. If you have any question, you can raise your question. We know from buck converter that average output voltage is kVs. We know कि buck converter की जो output voltage है वो kVs, but here we have not mentioned V out. Maybe the reason is
the V out has three different value. V out, this is the V out is the average, and okay, maybe at this point the T out will be average, and this at this point T out will be V out will be V minimum, and at this point V out will be V maximum. So maybe in order to avoid these things, we have mentioned output voltage as VA, that is the average voltage, and this is KVS. Also from circuit, VA is equal to IARA. अच्छा, ये मैं कराने के बाद ना आप लोग से क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि I have very short lecture today, but it is in depth. So I will ask from you individually. So please be attentive here. So output voltage is equal to V kVS. This we know from the buck converter, and also from the circuit. इस सर्किट में आउटपुट वोल्टेज कितने हैं, ये आपको E की वैल्यू 0 बता दी गई है. सो प्लीज इग्नोर दिस वन. सो इस सर्किट में भी आउटपुट वोल्टेज कितने होंगे, IA V is equal to IR, IA and R. So also from circuit means from this, इसके क्रॉस वोल्टेज कितने होंगे, IA और R. So IA R आ गया, ठीक है. Now we have to चूंकि हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस मालूम करनी है, so start from value of the inductance of is T on. First consider this T on period. So for switch on, जब ये switch on होगा, if ये switch on है, it means it's a short circuit and the current will flow from here to, इस शॉर्ट सर्किट के दौरान इस स्विच जब ये ऑन होगा तो डायोड विल बी रिवर्स बायस. आप चाहें तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट जरूर ड्रॉ करें. यहाँ पर आई हैव नॉट शोन हियर द इक्विवेलेंट सर्किट, बट इफ इट you have to make the solution very clear. So आप इसे ऑन के लिए, फॉर स्विच ऑन के लिए इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें. फॉर स्विच ऑन के लिए मींस ये स्विच ऑन है, ये शॉर्ट सर्किट है, जो प्लस की वजह से ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, इसे आप ओपन सर्किट बना दें, एंड द करंट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम दिस वन एंड इट विल कंटिन्यू टू फ्लो थ्रू द इंडक्टर एंड द आउटपुट रेजिस्टर. तो इससे क्या होगा कि ये इंडक्टर एनर्जाइज भी हो रहा है इस करंट की वजह से, एंड द करंट विल स्टार्ट टू इंक्रीज ग्रेजुअली. यही करंट बेसिकली दिस इज बेसिकली द आउटपुट करंट है. और ये करंट आप ये देखें कहाँ से स्टार्ट हुआ, मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट हुआ, और ये जैसे स्विच ऑन हुआ तो करंट विल स्टार्ट टू एनर्जाइज दिस वन, एंड दिस इज हैज स्टार्टेड टू एनर्जाइज फ्रॉम I minimum value to 200 value and then I maximum value. तो जितना देर तक ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा उतनी देर तक ये एनर्जाइज होगा. So this is this graph, this T on represents the condition where the switch is on. उसके बाद स्विच ऑफ हो जाएगा, तो फिर जाहिर बात ये डिस्कनेक्ट हो गया पूरी की पूरी सर्किट, और ये पोलैरिटी ऑफ दिस इंडक्टर विल रिवर्स. यहाँ पर माइनस और प्लस हो जाएगा, तो माइनस की वजह से ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी एंड द करंट विल स्टार्ट टू डिक्रीज. सो हाउ द करंट इज गोइंग टू डिक्रीज, करंट इज गोइंग टू डिक्रीज फ्रॉम I maximum value to I minimum, क्योंकि इस दौरान ट्रांजिस्टर ऑफ है आपका. इसके बाद फिर the time will come when the transistor will turn on, तो again ये इसे energize करना शुरू कर देगा. The cycle will continue. I have shown only the first clock, and the cycle will continue for the rest of the clocks. Okay, for switch on, what is switch on? So you understand the switch on में inductor energize होगा, and this is the condition for the switch on. Okay, so for switch on, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कितने होंगे? From the equation, from the basic physics, you know, the इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो डिपेंड्स करता है चेंज इन करंट थ्रू द इंडक्टर. मोर द चेंज इन करंट, जैसे इंडक्टर से ये ऑन टाइम में क्या करंट चेंज हो रहा है, अगर करंट चेंज हो रहा है तो इंडक्टर वोल्टेज मिलेंगे आपको. Yes, if we see
इस ऑन टाइम में इंडक्टर करंट चेंज हो रहा है फ्रॉम आई मिनिमम टू मैक्सिमम। तो इसका मतलब यहाँ पर ये चेंज जो है ना वो कांस्टेंट है, तो आउटपुट वोल्टेज भी कांस्टेंट हो जाएंगे। सो द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इंडक्टर multiplied by rate of change of the current. So this is the basic inductor equation. Then 15. My God. Okay, तो ये आपको समझ आ गई बात, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। This I give name equation number 1. इसी तरह से second way, how can find the inductor voltage? इंडक्टर वोल्टेज फ्रॉम द सर्किट, ये इंडक्टर वोल्टेज आपको निकालनी है। ये इंडक्टर वोल्टेज कैसे निकालेंगे? ऑन पीरियड में ये क्या है? शॉर्ट सर्किट है। तो इस एंड पे कितने वोल्टेज है? सप्लाई वोल्टेज है। इस एंड पे कितने वोल्टेज है? वी ए है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। आपको इस इंडक्टर का वोल्टेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसे आप मेक अ शॉर्ट सर्किट, इसकी अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज Vs है और माइनस वोल्टेज यहाँ पर दूसरे एंड पे ये वोल्टेज है। तो आप इस मैक्सिमम वोल्टेज को इस वोल्टेज से माइनस कर देंगे, यू विल फाइंड द इंडक्टर वोल्टेज। तो इस एंड पे कितने वोल्टेज है? मैक्सिमम वोल्टेज इज Vs वी नो, और यहाँ पर कितने वोल्टेज है? वोल्टेज एट द आउटपुट, एवरेज आउटपुट वोल्टेज and this voltage. ठीक है? So the inductor voltage can also be determined alternatively from this given circuit. Inductor voltage is equal to Vs minus Va for E, but we know E is 0. So consider E is 0. E was given 0. So VL is equal to Vs. Why we have Va is equal to KVS? ये देखिए हमने पहले बता दिया था आपको कि Va बक कन्वर्टर में भी ए इक्वल टू केवीएस के बराबर है। तो वी रिप्लेस वी ए बाई केवीएस एंड माइनस ई आई हैव इग्नोर्ड हियर। तो आपके पास इंडक्टर वोल्टेज ये हो जाएंगे, एंड इफ यू गो फर्दर वी एस इज कॉमन, सो 1 minus k. This is your equation number 2. So what we see from equation number 1 and equation number 2, the equation 1 is the equation for the inductor voltage, and equation 2 is also the equation for the inductor voltage. So these two voltages are equal. So how we can make a new equation using these two, equation number 1 and equation number 2. So this is the inductor voltage and this is the inductor voltage, and this means this value and this means this value. तो ये और ये बराबर हैं, तो इसका मतलब है this and this are also equals hopefully. तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर कर दिया, L di upon dt is equal to Vs minus 1 minus k. Hope you understand. And if you calculate, if you determine the I by dt, so di by dt is Vs 1 minus k divided by L. So this is equation number 3. So we found equation 1, 2, 3. If you have any question, you may ask, please. सोने की कोशिश ना करें। तो ओके नाउ वी, तो अभी हमें क्या पता चला कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। तो इस इक्वेशन को लेकर के वी हैव टू मूव फर्दर ऑन। तो probably in the next slide I have placed these two things as it is. So in the next slide we have this one, और ये क्वेश्चन 3 था जो मैंने पिछली स्लाइड में लिखा था। अब यहाँ पे what is di? Di basically is the derivative of the current with respect to the time, and derivative कोई भी curve हो सकता है, okay, like exponential curve. But here we are assuming that this is not the curve. We are, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टाइम, हेलो, यस, छोटा सा टाइम है ये। बहुत इम्तियाज, इतनी देर से आ रहे हैं आप? ओके तो मैं कहाँ पर था? कंट्रोल F5, ओके फंक्शन F5, यस। तो
So this was the equation 3, and the equation 3 I have redrawn here. अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि y di by dt is equal to del I. चूंकि di by dt is, we are assuming we have taken very small time on, it's a very high frequency, और इसमें हमने ये सपोज किया है कि it is not the curve, it looks like a straight line. So the straight line means del I. हम इसे di को चेंज कर सकते हैं del I से, and this del I exists for this dt. And what is dt here? del I जो एग्जिस्ट कर रहा है वो किस टाइम के लिए है? वो t on टाइम के लिए है. So this is being replaced by del I and t on. Now we must have to block these people who are disturbing me. Hmm. What topic? Okay. So I explained this one why del I is being replaced by di by dt. So you understand probably this one, and this can also be written as del I is equal to del I, and what is t on here? The t on is equal to kt, as we have explained it before. So t on is equal to kt. अब इस del I और kt को मैं हम शायद इसके साथ इक्वेट करेंगे. So del I upon kt is equal to di upon dt, and del I upon kt, del I upon kt, di upon dt कितना है? Vs1 minus k over L. Vs1 minus k over L. For the worst case scenario, k is equal to 0.5 होना चाहिए. K is basically here the duty cycle. तो आपको पता है कि जो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ाया था उसमें लिखा था हमने कि सीसीएम मोड ऑफ ऑपरेशन एंड डीसीएम मोड ऑफ ऑपरेशन. सीसीएम मोड ऑफ ऑपरेशन में हमने ये बताया था जनरली द ड्यूटी साइकिल शुड बी ग्रेटर देन 50%, and for the DCM mode of operation the duty cycle should be less than 50%. But we also spoke about if the duty cycle is 0.5, and for the zero, अगर ड्यूटी साइकिल 50% है तो उसमें करंट जीरो से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम पे जाएगा, और फिर इसके बाद करंट यहाँ पे जीरो पे टच होगा, बट इट डज नॉट स्टे एट जीरो. टच होने के बाद ये दोबारा जैसे मैंने बताया था कि जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एम्स, 10 से फिर डाउन होना शुरू होगा, 10 से डाउन होकर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, 0 के बाद फिर 1. So this is all this condition where the output current just touches the 0 ampere is also known as the CCM mode of operation. The worst case where the mode of operation should be CCM is when the duty cycle should be 0.5. Okay, so del I, how we solve this one? Del I kt ऊपर चला गया है. I understand that you will follow this one. Now place all these value. What is del I? Del I is a change in the current, and we have spoken before the change in the current was 20 amperes. K की वैल्यू 0.5 है, so why we k की वैल्यू हमने 0.5 क्यों लिया? क्योंकि जी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है सीसीएम के लिए उसमें k की वैल्यू 50% हो सकती है. So k is 0.5. T कितना दिया होता है यहाँ पर? T कितना था? लेट्स सी बैक. टी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? टी की वैल्यू लिखी नहीं हमने. ओह यस, वी हैव नॉट मेंशन हियर टी, बट द इंस्टेड ऑफ टी वी हैव फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज. So frequency is equal to 1 t time period is equal to 1 by f. So 1 by f using this we have placed here.
So T is not given, but T is equal to 1 by F, and F value 250 है, Vs was 550 given 1 minus K and inductance, and we calculate the value of the inductance. So we found the value of the inductance is this one, and the inductance we found is 27.5 milliampere. So the question क्या था कि ये जो ripples थे आउटपुट करंट के, इनके ripples को लिमिट करना था 10% पे. किस चीज के 10% पे? आउटपुट एवरेज करंट 200 था, तो रिपल्स इस 200 के 10% तक अलाउ है, इससे ज्यादा अलाउ नहीं है. सो फाइंड आउट फॉर दिस कंडीशन, find out the value of the inductance, and we found the value of the inductance is 27.5. And okay, so this allows it is the minimum inductance required to keep the current ripples down to 10% of IA. IA 200 ampere था, 10%, right? And the output current ripple in the load R can be further decreased. ये जो ripple है, ये कितने इसमें changes है? 200, यहाँ से 200 से कितना ऊपर जा सकते हैं? कितना जाएगा? 210. यहाँ से और 200 से नीचे कितना जा रहा है? 190. So the change in the ripple is from 190 amperes to 210 amperes. So the total change is 20. So how we can further decrease this fluctuation? इसकी वैल्यू को और हम कैसे सुकेड़ सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? Of course, one of the way is to increase the inductance value from 27.5 milliampere to some higher values. For example, अगर आप बहुत ज्यादा स्मूथ चाहते हैं, आप सिंपल ये करेंगे 27.5 मिली एम्पियर है ना, मिली हेनरी है, आप इसको डबल कर लें या 50% ज्यादा कर लें, डबल कर लें, 27 को आप डबल करके कर लेंगे तो सो वी होप कि इसकी जो फ्लक्चुएशन है वो काफी कम हो जाएगी. सो दिस इज द एंड ऑफ द, बाकी लो पास फिल्टर हमने आपको बता दिया पहले. ये चीजें हैं, ये आपको you should know. You should be able to draw the DC-DC converter block diagram, and you should be able to explain this one. So we have done this one, but this is once again presented कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें कि DC-DC converter की जो block diagram है वो ये है. This could be important in the final examination. So the slide is over now. This is the time for the attendance. The attendance. So how many? 22. Okay, that's good. Hello. अच्छा, मैं आप लोगों की इजाजत से डाउनलोड अटेंडेंस कर रहा हूँ. So probably I have taken the attendance now. Yes, I found the meeting attendance here. It's total 23%. Okay, and now the question answer session. ये जो है ना 012 कौन है भाई? 012. Who is 012? 02133172012 कौन है? Who is this one? Okay, 094 कौन है? What's your name? अच्छा, आवाज मैंने बंद कर दी क्या? Okay, लेकिन oh, you can answer. Yes. Okay, 094. What's your name, please? इजाज अकरम. इजाज अकरम साहब, आप ही बताइए कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है. 2-3 सेंटेंस में बताइए कि हमने क्या किया आज. सर आज हमने सर बक कन्वर्टर की एग्जांपल नंबर 5.3 से स्टार्ट करा है. गुड. और उसके बाद हमने सर बक कन्वर्टर की एग्जांपल्स हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी थी. अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की या मिनिमम वैल्यू फाइंड की है? सर हमने एवरेज से मैक्सिमम वो निकाला है 10%. 10%. ठीक है इजाज साहब, बहुत शुक्रिया.
And 012, who is 012 please? सर फराज अहमद। फराज अहमद। फराज अहमद साहब ये बताइए कि इसमें आउटपुट रिपल का चेंज कितना था? 20 What is एम्पेयर out? सर। 20 20 एम्पियर। एम्पेयर मैक्सिमम चेंज। ठीक है। अच्छा 032 प्लीज, व्हाट्स योर नेम? मेरे पास नाम इसके साथ नहीं आता है, so next time I will arrange so that I will know who is 032 by name. 32 कौन है भाई? सो रहे हैं? ओके, जब जाग जाए तो बताइएगा। 048 048 who is? जी सर, मोहम्मद अली सर। मोहम्मद अली। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये बताइए कि इसमें एवरेज करंट कितना था? आउटपुट एवरेज करंट कितना था? हेलो जी मोहम्मद अली साहब, आउटपुट एवरेज करंट इसमें कितना गिवन था? Okay, 032 is unable to सर, answer. 200 एम्पेयर था। हेलो 200 अभी आवाज इनपुट आ- था या आउटपुट था? सर इनपुट था ना। इनपुट था। खुदा का खौफ करें यार। हेलो जी सर, 200 एम्पेयर करंट जो था हमारे पास, वो आउटपुट करंट था सर। 200 आउटपुट था, सही है, गुड। नाउ 048 048 सर 048 अच्छा आप ही ने जवाब दिया है, सही सही है। 057 057 सर हदीस खालिद। क्या नाम आपका? हदीस खालिद। अच्छा मुझे आवाज समझ नहीं आई, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि ये यहाँ पर जो आउटपुट रिपल करंट है वो कितना था? सर रिपल करंट हमारे पास 10 एम्पीयर था पास मैक्सिमम। कमारिए। सर माइक हाँ बताइए, दोबारा बताएं। 10 एम्पीयर मैक्सिमम था और 10 हम्म। एम्पीयर मिनिमम था। डाउन की तरफ, तो टोटल फ्लक्चुएशन कितनी थी? टोटल फ्लक्चुएशन 10% अलाउड थी सर, और जो ठीक है, थोड़ी सी आप नेक्स्ट टाइम लेक्चर जरा सा अटेंटिव होकर अटेंड करेंगे। एंड हु इज 062 62 कौन है? व्हाट्स योर नेम प्लीज? यस सर, अब्दुल्ला। हेलो जी व्हाट्स योर नेम प्लीज? अब्दुल्ला आसिफ। अब्दुल्ला अब्दुल्ला आसिफ। आसिफ। अब्दुल्ला आसिफ भट्टी। यस सर। यार आपका तो नाम मैंने कहीं सुना सुना हुआ लग रहा है। अब्दुल्ला आसिफ भट्टी काफी मशहूर थे आप शायद किस जमाने में। ओके, जब फिजिकल क्लास होगी तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपके साथ। ओके अब्दुल्ला आसिफ भट्टी साहब, ये बताइए कि इसमें हमने आज क्या चीज पढ़ी है? सर बक कन्वर्टर के बारे में आपने बताया कि जैसे इंडक्टर की एक कांस्टेंट रहेगी वैल्यू, तो आउटपुट भी जो है ना वो सेम आएगा सर वेव। तो जैसे हमारे पास उसके इंडक्टर की वैल्यू इनटू चेंजिंग रेट ऑफ करंट जो है जैसे। मैं शायद कुछ और क्वेश्चन करूं आपसे कि ये बताएं कि इसमें अगर मैं फ्लक्चुएशन को जो रिपल है उसे मैं मजीद कम करना चाहूंगा तो हाउ आई कैन डू इट? हमारे पास लोड करंट कम कर देंगे सर। लोड करंट कम कर देंगे, आंसर सही है, बट दिस इज नॉट इन कॉन्टेक्स्ट इंडक्टर को हाई कर देंगे ना सर उसकी वैल्यू। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये बात हुई ना, सही है आपका वो आंसर सही है, लेकिन इस टुडेस लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में आपका आंसर गलत है। वो समझ रहे हैं? मैं आपको फिलोसफिकल चीजें बता रहा हूँ। ये वो जो आपने बताया ना कि लोड कम कर देंगे, ऑफ कोर्स लोड कम कर देंगे तो क्या होगा कि फ्लक्चुएशंस कम हो जाएगी, दैट्स ट्रू, बट दिस इज नॉट करेक्ट आंसर फॉर इन कॉन्टेक्स्ट विद दिस टुडे। तो आप बाद में ये ना क्लेम करेंगे कभी कि यार मैंने तो आंसर सही बताया था। आपका आंसर सही है, लेकिन टुडे लेक्चर के नजदीक वो आंसर आपको 0 मार्क्स मिलेगा, समझ रहे हैं ना? तो मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होती है उसमें आप अच्छी तरह याद रखें इंडक्टर की वैल्यू को हाई करेंगे वो। हाँ, तो अब आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, और अगर आपने पहला वाला होता
तो उसमें आपको मार्क्स 0 मिलते हैं, ठीक है ना? यू जी शुड सर। अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। अच्छा आपका क्या 057 062 हो गया, 086 जल्दी करें 086 यस सर। शारिक 086 कौन है? शारिक रहमान। शारिक। शारिक ये बताएं कि आज हमने क्या पढ़ा है? एंड सर टुडेज लेक्चर इज बग ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कन्वर्टर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट सर है, इसलिए मैं आपको पूछती थी, बताइए। सर बग कन्वर्टर के बारे में आपने बताया कि इसके अंदर जो हमारे पास रिपल्स हैं उसको 10% लाओबेल के लिए हमें इंडक्टर की वैल्यू कितनी सेट वेरी करनी गुड है? आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छी तरह मुझे बताया, थैंक यू वेरी मच। जब इसके बाद 86 के बाद है 93, हु इज 93 प्लीज? मोहम्मद राव, मोहम्मद रिजवान है 93, हु इज दिस 93? maybe he is not here. 097, 097, are you here? ये सब सर एब्सेंट होंगे अगर ये जवाब नहीं देंगे। 093 093 क्या नाम है आपका? सर नताशा। अच्छा आप ये बताइए कि अगर ये जो रिपल है इसे हम मजीद कम करना चाहेंगे तो व्हाट इज द इजीएस्ट वे इन कॉन्टेक्स्ट विद टुडेज लेक्चर, कि इसकी रिपल्स को मजीद कैसे कम कर सकते हैं? सर इंडक्टर की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज कर देंगे, जी ठीक है, गुड। हु इज 97 नाउ? 097 जल्दी से आए। 097, 099, यस सर। रेहान हाँ जी है। 099। अच्छा ये फ्लक्चुएशन क्यों होती है? ये आई मिनिमम और आई मैक्सिमम क्यों है डीसी बक कन्वर्टर में? ये फ्लक्चुएशन क्यों होती है, ये बता सकते हैं आप? सर ये वो सीधा स्विच क्यों की नहीं वजह रहता? से सर, डायोड की वजह से। डायोड की वजह से नहीं, सही बताएं। चलिए कोई और बताए। आफिया शाहिद, आपका तो नाम नजर आ रहा है। आफिया शाहिद ये बताइए यस कि सर। why there is a change in the output current, why there is a change, इसमें आउटपुट करंट कांस्टेंट क्यों नहीं रहती? ये रिपल क्यों होता है इसके अंदर बक कन्वर्टर में? इंडक्टर्स की वजह से नहीं, सही जवाब दे, सही जवाब दे। फ्लक्चुएशंस क्यों होती है इसके? आप ये देखें, ये why there is a fluctuation, जब ये स्विच ऑन होगा तो करंट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब है कि आउटपुट करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जब ये स्विच ऑफ होगा तो करंट ये यहाँ से डी एनर्जाइज होगा, तो करंट यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आई एक्सप्लेन बिफोर बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ 0 to 10 एम्प्स। जब ये स्विच ऑन होगा तो 0 से 10 एम्प्स तक ये करंट फ्लो होगा, और उसके बाद फिर 10 एम्प्स से करंट स्टार्ट टू फॉल डाउन। तो दिस इज द रीजन व्हाई, क्योंकि डीसी कन्वर्टर में इट्स ऑलवेज स्विच कंटिन्यूअसली टर्न्स ऑन एंड टर्न्स ऑफ। जैसे टर्न्स ऑन होंगे करंट इंक्रीज होगा, टर्न ऑफ होंगे करंट डिक्रीज होगा। सो दिस इज द फेनोमेना ऑफ दिस डीसी कन्वर्टर, कि यहाँ पर फ्लक्चुएशन होनी ही है, इट कैन नॉट बी ऑलवेज कांस्टेंट। समझ आ गई बात? ओके, आफिया शाहिद के बाद कौन है? अब्दुल्ला सिद्दीकी। अब्दुल्ला सिद्दीकी, हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है। बताइए कि इसमें फ्लक्चुएशन क्यों होता है? सर वो स्विच की वजह से होता है ना, स्विच ऑन ऑफ हो रहा है हमारा। अच्छा, अगर स्विच की वजह से होता है, आपने जवाब दे दिया, मैंने मान भी लिया। अगर मैं स्विच को कंटिन्यूसली ऑन कर दूं तो क्या फ्लक्चुएशन होगी? सर माइनर सी होगी। ओके, अफरा से आप। अस्सलाम वालेकुम सर।
बस आप मौजूद हैं? यस सर। टाइम इज शॉर्ट, ओके, अल्लाह हाफिज। और इसके बाद और कौन है अपने से आपके बाद कौन है? एक मिनट, अजीम आजम तारण मौजूद हैं? सर। ओके, थैंक यू। फहद इम्तियाज मौजूद हैं? यस सर। फहद इम्तियाज, यस सर। हाँ, फहद इम्तियाज। मोहम्मद रिजवान 8B, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। आपके मार्क्स कितने आए मिड में? सर 13। 13 आए, कम आए ना? अच्छा यस अच्छा, सर। आप आए भी थे, अच्छा अच्छा। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है बताइए? सर हमने बक कन्वर्टर के बारे में पढ़ा है कि जिसमें यानी कि जो लोड रिपल्स होती हैं एक्सेप्टेबल कितनी हो सकती हैं, वो हमने यानी कि उसमें एवरेज लोड करंट जो था वो 200 हमें गुड, गिवन था और गुड आंसर, 10% गुड के ऊपर आंसर। ठीक है ठीक है, थैंक था। यू। टाइम कम है तो मैं हो सकता है आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में भी जाना हो, तो मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। मोहम्मद रिजवान के बाद है मोहम्मद उमर कासिम। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट ठीक सर। है। मुशाहिद राव। प्रेजेंट सर। मुशाहिद राव, यस सर ठीक है। प्रेजेंट। मुशाहिद राव, ये अगर यहाँ पर फ्लैक्चुएशन अगर मैं कम करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? सर इंडक्टर की वैल्यू इंक्रीज करके हम कर सकते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, कोई और आज के लेक्चर के अलावा कोई दूसरा मेथड बता सकते हैं आप मोहम्मद मुशाहिद राव? कोई और सेकंड मेथड, ऑल्टरनेट मेथड बता सकते हैं? क्या चीज हम किस चीज से फ्लक्चुएशन कम कर सकते हैं सर वो इंडक्टर के फिल्टर भी अलावा? यूज कर सकते हैं, आउटपुट में ओके, फिल्टर लगा देते हैं। ठीक है। नताशा उमैर, ये इन्होंने जवाब दे दिया है। नताशा उमैर है, ये कोई और है? जी सर, सर मैं जवाब दे दिया था, वो असल में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मेरा 039 था, आपने कोई मसला नहीं है, 093 बोला था। कोई मसला नहीं, कोई जी मसला नहीं। शहरयार खान, शहरयार खान। यस सर प्रेजेंट। ओके, फिर क्लास हम एंड कर रहे हैं। अब आप लोग का टाइम है 2-3 मिनट आपके हमारे पास है अभी, 4 मिनट है। तो इफ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द स्लाइड्स, आई एम अवेलेबल टू आंसर यू। इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास है तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो आप मुझे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें कोई भी अगर क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें प्लीज। डेरिवेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, बट इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ी सा आगे पीछे इसके एक दफा आप इसको डेरिवेशन, एंड दिस एग्जांपल 5.3 इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी रेस्पेक्ट्स। ठीक है, अच्छा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर ये एनरोलमेंट नंबर 093 का जो है माइक नहीं चल रहा, तो आप उनसे सवाल कर लें चैट पे ही, तो जवाब दे देंगे। चलो ठीक है। वो नाम क्या है उनका? फारिया अशरफ। आर्या सर, चले ठीक है। ये तो इनका हमेशा से मसला रहता है माइक का यार, मुझे याद है पिछले साल भी शायद इनका कोई मसला था। फारिया अशरफ का क्या था? ओके, एनीवे विल सी नेक्स्ट टाइम पे अपना। फारिया अशरफ, इफ यू आर हियरिंग मी, नेक्स्ट टाइम आपने जो माइक है उसको प्लीज सही कर लें, और आई विल आस्क यू डेफिनेटली फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर? अदरवाइज आई हैव टू एंड दिस सेशन। ये नो मैंने सर। आई ट्राइड कि थोड़ी सी मैं एनिमेशन करूं और करके थोड़ा सा आपको समझाऊं कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये वैल्यू यहाँ से आई है, ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो जाहिर बात है फिर ये इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये जो ग्राफ है ना, इस सर्किट को समझना है कि ऑन पीरियड में हाउ इट वर्क्स, ऑफ पीरियड में हाउ इट वर्क्स, और हाउ यू कैन ड्रॉ दिस ग्राफ। दिस इज एसेंशियली रिक्वायर्ड। आपसे अगर ये एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आपको ये ग्राफ भी बनाना है डेफिनेटली। हो सकता है उसमें एग्जाम्पल में ये नहीं लिखा हो कि ड्रॉ द आउटपुट ग्राफ, आप बस न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आप शुरू हो जाए और आपने अगर बगैर इसके बताया तो यू विल नॉट मैक्सिमाइज योर मार्क्स। आप इसे हमेशा ऑलवेज ट्राई टू राइट द फिगर्स एंड द ग्राफ व्हेनेवर इट इज आस्क्ड। अगर नहीं भी है डायरेक्ट, फिर भी आप उसको फिगर ग्राफ की शक्ल में लिखें। ओके, द क्लास इज ओवर।
थैंक यू वेरी मच। स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया। अल्लाह हाफिज़।